Good morning, boys and girls. Today we are going to do certain practicals from the chapter Changing Profit Sharing Ratio. Okay. Question number. See, the question number is 22. What a coincidence. The edition is 2022 and the question number with which I am starting is 2022. In this question, I will try to make you understand the concepts which we have taught you. As far as the theory part or the conceptual part is concerned, whatever I taught you, I would try to make you understand through this particular question, whatever the concepts that I taught in my previous videos. So let's start. Read the question. Hari, Kunal and Umar are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3. 1 अप्रैल 2018 से they decided to share future profits and losses in the ratio of 2:3. Their balance sheet showed a balance of 75,000 in the profit and loss account and balance of 15,000 in investment fluctuation fund. There is a balance of rupees 75,000 in the profit and loss account and there is a balance of 15,000 in investment fluctuation fund. For this purpose, it was agreed that goodwill of the firm was valued at 3 lakh. चलिए, फर्म की गुडविल वैल्यू हो गई 3 लाख की. तो आपको यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट क्या सिखा हुआ है कि जो गुडविल होगा इसका एडजस्टमेंट जो एडजस्टमेंट एंट्री होएगी वो होएगी गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. ठीक है, और इसके लिए गेन और सैक्रिफाइस आपको निकालना होगा. तो सबसे पहला वर्किंग नोट मैं करता हूँ. देखो यहाँ पर मैं सबसे पहला वर्किंग नोट ले लिया. नंबर 1, ओल्ड रेशियो. द पार्टनर्स आर हरि, कुणाल एंड उमा. हरि, कुणाल, उमा, these 3 are the partners. The old ratio is 5:3:2. तो क्या करेंगे 5/10, 3/10 and 2/10. Here is the new ratio and the new ratio is 2:5:3. 2/10, 5/10 and 3/10. Let us check their sacrifice or gain. What I taught you, the formula is old ratio minus new ratio. Old ratio minus new ratio. If it is like plus, to sacrifice. If it is like minus, then it is gain. So let's start calculating. 5/10. Here you see, this is a very simple process. Here you see the denominator is 10, so write denominator 10 and then 5 minus 2. Then 5 minus 2. This is 3. Again 5, denominator is 10 and 3 minus 5 minus 2. What it is? Denominator is 10 and 2 minus 3 minus 1. ये द डिनोमिनेटर सर्च नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. सीधे डिनोमिनेटर डालो. ये हो गया सैक्रिफाइस, ये हो गया गेन और ये हो गया गेन. ओके, तो हमारे पास क्या आ गया सैक्रिफाइस. किसने सैक्रिफाइस किया? हरि ने किया. कुणाल और उमा ने गेन किया. तो अब ले लेंगे कंपनसेशन फॉर गुडविल इज इक्वल टू, अगर मैं कुणाल के लिए बोलूं, कुणाल कितना कंपनसेशन फॉर गुडविल देगा, तो इट इज 2/10 इंटू 3 लाख एंड ये कितना देगा 1/10 इंटू 3 लाख. It comes to 60,000 and it comes to
30,000. So both the guys, Kunal and Uma, shall compensate Hari for his sacrifice a sum of rupees 60,000 and 30,000 in terms of goodwill. Okay, so there would be a journal entry. So I'll pass the journal entry later on. First is the working notes. Okay, now let's start with the journal entries. So see the journal here, you will write journal. Don't forget to write the format. Okay, so the first journal that you are going to pass is adjustment for goodwill. ठीक, debit to Hari's capital account. ठीक है ना, adjustment for goodwill. The first entry is passed. $60,000, 30,000. The total is 90,000. The second entry. See, the investments having a book value of 50,000 were valued at 35. और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 15,000 का बैलेंस है. फाइन, 15,000 का बैलेंस है और इन्वेस्टमेंट्स की जो बुक वैल्यू है वो 50,000 है. अब मार्केट वैल्यू 35,000 होगी, तो 15,000 का लॉस हो गया. तो तुम्हारे पास में क्या है, इन्वेस्टमेंट. यहाँ पर क्या हुआ, जो तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उसमें जितने पैसे हैं उतने का ही लॉस हुआ है. अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 15,000. तो जितने से वैल्यू तुम्हारी फॉल हुई है उतना ही तुम्हारे पास में रिजर्व है. तो जो रिजर्व है वो सारा का सारा इस फॉल इन वैल्यू को कंपनसेट करने में लग जाएगा, कुछ बचेगा नहीं. फाइन, तो योर एंट्री वुड बी, व्हाट हैज हैपेंड, योर इन्वेस्टमेंट इज adjusted. What is the amount? 15,000. Write like this. The narration you must write. Thereafter the stock having book value of 50,000 be depreciated by 10%. स्टॉक की वैल्यू 5% से 10% से घट गई. तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000. तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट. स्टॉक की वैल्यू घट गई ना, तो स्टॉक को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सॉरी. अगर एसेट्स की वैल्यू घट जाती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट. कितने से घट गई, 5,000 से घट गई, तो 5,000 हो गया. राइट, ये एंट्री भी पास कर दी आपने. चलिए, उसके बाद चौथी चीज़ देखिए. आपने क्या किया था, आपको बोला था कि भाई देयर बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 75,000 इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इसको भी कर लीजिए. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो 75,000 है उसको सारे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू Hari's capital account, to Uma's capital account, to Kunal's capital account. पहले लिखो, to Uma's capital account. अब ये जो प्रॉफिट है इसको ओल्ड रेशियो में बांटना है. किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये पहले से आपके बैलेंस शीट में है. तो इस प्रॉफिट को आपने क्या करना है, ओल्ड रेशियो में बांट देना है.
कितना प्रॉफिट है? इट इज 75,000। 5:3:2 के रेशियो में बांटना है, 10 से डिवाइड कर दें, 7500 इंटू 5, 3 और 2, 37,500, 22,500 and 15,000। This way it is। पांचवी जर्नल एंट्री देखेंगे। अब क्या हो गया कि तुम ये देखो कि तुम्हारे पास जो रिवैल्यूएशन है, ये जो रिवैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यूएशन किस में गया? क्या सिखाया था मैंने? रिवैल्यूएशन अगर डेबिट में हो, डेबिट टोटल रिवैल्यूएशन का बड़ा होगा तो मतलब लॉस होगा, और अगर क्रेडिट टोटल बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा। यहाँ पर देखो कहीं कोई रिवैल्यूएशन है? कहीं कोई रिवैल्यूएशन है? नहीं। इसके अलावा कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, इसके अलावा कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। ठीक है, तो जब इसके अलावा कोई रिवैल्यूएशन नहीं है तो तुम्हारे पास इसका मतलब हो गया कि रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है। जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस होगा वो पार्टनर्स आपस में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक, तो तुमने क्या लिखना है? हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना? लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन distributed in old ratio। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितनी है बच्चों? 5,000। 5 3 2 में है, फिर इससे 10 को, इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, 500 इंटू 5 2500। आई होप ये सब तुमको आता होगा। 1500 और 1000। स्टोरी समझ में आई? तो इस तरीके से ये प्रश्न समाप्त हो गया। मैं एक बारी पूरा क्विक रिकैप इस क्वेश्चन का पूरा करा देता हूँ ताकि तुम सारी चीज़ें समझ पाओ। देखो, सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन में बोला कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। तो मैंने सोचा यार जब गुडविल फर्म की वैल्यू हो गई है तो इस गुडविल का तो कंपनसेशन होगा। तो फिर मैंने क्या किया, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर दिया, तो मेरे पास सैक्रिफाइस गेन आ गया। ठीक है, फॉर्मूला लिखा ओल्ड माइनस न्यू, अगर पॉजिटिव आ जाए तो सैक्रिफाइस और नेगेटिव आ जाए तो गेन। ओके, फिर कंपनसेशन फॉर गुडविल कौन देगा? जो गेनिंग पार्टनर से वो कंपनसेशन देंगे किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो कंपनसेशन के लिए मैंने जो भी गेन हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू ऑफ गुडविल से। तो कितना आ गया? इसका आ गया 60,000, इसका आ गया 30,000। ऑलराइट, अब यहाँ से उठ के मैं चला गया जर्नल में। ठीक है, तो मैंने लिखा जो गेनिंग पार्टनर्स हैं टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो कुणाल्स कैपिटल, उमास कैपिटल टू हरीज कैपिटल। ठीक, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। नाउ दूसरा मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा कि दूसरा एडजस्टमेंट है द इन्वेस्टमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50 वर वैल्यूड एट 35,000। यानी 50 की बुक वैल्यू है, 35 होगी, 15,000 का लॉस हो गया। लॉस इन द इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और हमारे पास देखा हमने कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 15,000 रुपये दिए हुए हैं। तो जितना आपके पास फंड में पैसे हैं उतना ही आपका लॉस हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कुछ बचा ही नहीं कि पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या लॉस भी इतना बड़ा नहीं है कि फंड से एक्सेस हो जाए, एक्सीड कर जाए। ठीक, जितना फंड है उतना ही बड़ा आपका लॉस है। फिर आपने देखा कि कहता है कि भाई स्टॉक को डेप्रिसिएट किया गया हुआ है 10%, तो 10% से डेप्रिसिएट किया गया। जब भी किसी एसेट की वैल्यू घटती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ठीक, उसके बाद हमने थोड़ा सा एक बार और क्वेश्चन की तरफ देखा तो देखा कि भैया हमारे बैलेंस शीट में जो है 75,000 का प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस है। तो उस जो भी पुराना प्रॉफिट है, अभी जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुई है, उस समय जो भी प्रॉफिट आपके बैलेंस शीट में दिख रही है वो हो गया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। तो हमने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ओल्ड रेशियो में मैंने बांट दिया किसको 75,000 को, तो 37,500 22,500 और 15,000 हो गया। ठीक है, ये बांटना तो आपको आता है 5:3:2 के रेशियो में बांटना, दैट इज नॉट डिफिकल्ट। नाउ अब लास्ट में हमने देखना है कि अब तो कुछ बचा नहीं है, तो अब क्या करना है हमको, रिवैल्यूएशन अगर हुई है तो प्रॉफिट या लॉस होगा, है ना। तो हमने आपको बताया हुआ है कि रिवैल्यूएशन का अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो प्रॉफिट हो गया और अगर डेबिट बैलेंस हो जाए तो लॉस हो गया। यहाँ पर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री सिर्फ एक ही है, ये एंट्री रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है और यहाँ पर रिवैल्यूएशन डेबिट में, इसका मतलब डायरेक्टली है कि डेबिट बैलेंस आपका ज़्यादा है, इसका मतलब आपका क्या है, लॉस है। लॉस है तो फिर से लॉस को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। जब लॉस को बांटना होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे और 2 हो जाएगा रिवैल्यूएशन। ऑलराइट, सो हरीश कैपिटल, कुणाल्स कैपिटल, उमास कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और हमने कहा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में हमने क्या किया, लॉस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन को बांट दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, 3 मार्कर क्वेश्चन होगा ये। ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसको रब करते हैं। ओके, देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। इसमें इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, आप जरा इसको समझेंगे और कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 को आप देखिए, कहता है ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट्स and losses in the ratio of 2:1. They decided to share profit with effect from 1st April 2022 in the ratio of 5:3:2. जैसे ही रेशियो बदल गया, सबसे पहला वर्किंग नोट आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला वर्किंग नोट डब्ल्यू नोट नंबर 1, सबसे पहले लिखिए ओल्ड रेशियो। आपके पार्टनर्स हैं ए, बी और सी, तो ओल्ड रेशियो लिख दीजिए। ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दीजिए, सेक्रीफाइस और गेन पता चल जाएगा। 2/5, 2/5 और 1/5। फिर आप लिखेंगे न्यू रेशियो। ठीक है, आपका न्यू रेशियो क्या है 5:3:2, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10। सेक्रीफाइस अगेन फॉर्मूला लिखा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 2/5 माइनस 5/10, 2/5 माइनस 3/10, 1/5 माइनस 2/10 कर दिया। अब आगे देखते हैं 4 माइनस 5, 4 माइनस 3, 2 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1/10, 4 माइनस 3 1/10 एंड इट इज नेल। इसका मतलब इसने क्या किया, गेन किया, और इसने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। ठीक है, डिटरमिन हो गया, जो प्लस हो गया तो सैक्रिफाइस हो गया, माइनस हो गया तो गेन हो गया। चलिए, तो सबसे पहले आपने निकाल दिया सैक्रिफाइस और गेन। अब दूसरा देखिए क्या कहता है, कहता they also decided to not change the values of assets and liabilities in the books of account। उन्होंने कहा कि भाई हमको वैल्यू ऑफ जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चेंज नहीं करना। तो आपको मैंने क्या बताया था, एक और वर्किंग नोट करिए, वर्किंग नोट नंबर 2। जो भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है उसको प्लस कर दीजिए। तो यहां पर देखेंगे जिन जिन एसेट्स की वैल्यूज, जैसे मशीनरी है, इसकी वैल्यू बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू में कंपेयर कीजिए। तो मशीनरी, दूसरा वर्किंग नोट क्या करेंगे,
रिवैल्यूएशन, ठीक है ना। तो एक हो गया मशीनरी, इसकी वैल्यू बढ़ गई है, पुरानी वैल्यू कितनी थी 250, अब हो गई 3 लाख। तो जिस एसेट की वैल्यू बढ़ी है, जितने से बढ़ी है उसको हम लोग प्लस कर देंगे। कंप्यूटर्स 2 लाख से 175 हो गया, कोई बात नहीं। जिस एसेट की वैल्यू घट गई है यानी 25,000 से ये वैल्यू घट गई है तो उसको माइनस कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी 90 से 75 हो गया, अगर लायबिलिटी की वैल्यू घट जाए तो प्लस करेंगे 15,000। ठीक, क्या याद रखना है, एसेट की वैल्यू, यहां क्या याद रखना है कि एसेट की वैल्यू अगर बढ़े तो प्लस कर दो, लायबिलिटी की वैल्यू घटे तो प्लस कर दो, एसेट की वैल्यू अगर घटे तो माइनस कर दो, लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़े तो माइनस कर दो। समझ गए। तो ये जो दोनों हैं मित्रों, ये दोनों जो हैं ये प्लस वाले हैं और ये दोनों जो हैं ये माइनस वाले हैं, ये याद रखना है बस। फाइन। आ जाओ। फिर देखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब इसकी वैल्यू देखिए आप बुक में 15,000 से 25,000 हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है, क्या कहा मैंने, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो इसको हम माइनस करेंगे, तो 15 से 25 हो गया, तो ये 10,000 हो गया, तो इसको माइनस करेंगे। ठीक, और सन्ड्री क्रेडिटर आपका घट गया था तो प्लस कर दिया। अब इसको प्लस माइनस करके यहां पर लिखेंगे प्लस माइनस करके यहां पर लिखेंगे नेट इफेक्ट। अब देखिए 50 प्लस 15 कितना हो गया 65, 65 में से कितना गया 35, तो कितना बच गया 30,000, और ये है प्लस में, 30,000 है और ये है प्लस में। तो अगर प्लस में होगा 30,000 है और ये किस में है, प्लस में है। ठीक है, अगर यही माइनस में होता तो हम कुछ और करते, लेकिन ये माइनस में तो है नहीं, तो प्लस में है। प्लस में होता है तो यहां पर हम लोग फिर एक तीसरा वर्किंग नोट लेते हैं, ये लिखते हैं कंपनसेशन, कंपनसेशन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये बात समझ में आ गई, ये प्लस है, इसलिए कंपनसेट कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के लिए और किसने गेन किया है, कंपनसेशन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय किसने गेन किया, ए टू बी। समझ में आ रही है बात, बाय ए टू बी। तो कंपनसेशन फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड कंपनसेशन फॉर गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय ए टू बी, ठीक, इज इक्वल टू अमाउंट कितना हो गया 1/10 इंटू 30,000, मतलब 3,000। करेक्ट। तो अब ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। अब यहां पर आपका आ गया सॉल्यूशन, तो यहां लिखेंगे आप जर्नल, और जर्नल में जर्नल एंट्री पास करेंगे। गेनिंग पार्टनर कौन है, ए है, तो आप लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल $3,000 और नरेशन लिख देंगे बीइंग कंपनसेशन फॉर गेन ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, नरेशन लिख देंगे बीइंग कंपनसेशन फॉर गेन ऑन रिवैल्यूएशन, सिंपल, गॉट इट। तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एकदम से सारे वर्किंग नोट समझ गए आप। 3 वर्किंग नोट हमने बनाए, एक वर्किंग नोट ये रहा, दूसरा वर्किंग नोट ये रहा, तीसरा वर्किंग नोट ये रहा, और फाइनली हमारी ये जर्नल एंट्री
पास हो गए। तो हमेशा याद रखना है जब भी कभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली सिचुएशन हो तो ये आपको गेन और सैक्रिफाइस निकाल लेना चाहिए। अगर आपको नेट इफेक्ट देना हो, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो, या रिवाइज्ड वैल्यू बोला कि रिवाइज्ड वैल्यू नहीं लिखनी है, पुरानी वैल्यू बुक्स में रहने देनी है, तो हमको पता है फिर नेट इफेक्ट के थ्रू चलना है हमको और एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, अगला क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों। 24वां सवाल देखो, पढ़ो। कहता है ABC पार्टनर्स है, शेयरिंग 3:1 में 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। तो जैसे ही ऐसे बोल देना, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, सीधे वर्किंग नोट पे पहुंच जाओ, वर्किंग नोट करो। और क्या वर्किंग नोट करो? प्रॉफिट के लिए। तो आपके पास पार्टनर्स कौन कौन है? ABC पार्टनर्स है, A, B और C। तो ओल्ड रेशियो लिख दो। ओल्ड रेशियो क्या कहता है? कहता है 3:2:1, 3:2:5:1 6, 2/6 और 1/6। फिर तुमने लिख दिया यहाँ पर न्यू रेशियो। कहते हैं इक्वली करना है, तो 1/3, 1/3, 1/3। अब एज यूजुअल मैंने कहा कि यार निकाल लो, क्या निकालना है इसमें? सैक्रिफाइस या गेन। मैं ऐसे लिखूंगा, तुम भी ऐसे लिखना। प्लस आ गया तो सैक्रिफाइस, और ओल्ड माइनस न्यू। फॉर्मूला क्या मैं लिख रहा हूँ? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड में से न्यू, प्लस आ गया तो सैक्रिफाइस, माइनस आ गया तो गेन। अब यहाँ पर देखो 3/6 -1/3, 2/6 -1/3, 1/6 -1/3। सिंपल सिंपल। 6, 1 - 2, 6, 2 - 2, 6, 3 - 2, 1/6। तो ये प्लस है तो सैक्रिफाइस, ये नील हो गया, और ये -1/6 है तो ये हो गया गेन। क्लियर हो गया? ये गेन है और ये सैक्रिफाइस। सबसे पहला काम ये कर लेना चाहिए। दूसरा काम कहता गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1.5 लाख। तो कंपनसेशन फॉर गुडविल, कंपनसेशन फॉर गुडविल कौन किसको देगा? बाय C to A। गेनिंग कौन है? गेनिंग कौन है? C गेनिंग है, तो C किसको देगा? A को देगा। C किसको देगा भैया? A को देगा। कंपनसेशन बाय C to A। वैल्यू निकाल लो, क्या वैल्यू आएगी? तुम्हारी गुडविल की वैल्यू कितनी हुई है? 1,50,000। तो 1,50,000 इंटू 1/6, इट कम्स टू 25,000। ठीक है, यहाँ पर तुम एक जर्नल एंट्री पास कर दो। क्या जर्नल एंट्री? सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो गया 25,000। ये लिख दो, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड बाय 6% क्रेडिटर्स। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया? यहाँ पर अब प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। वर्किंग नोट थे, अब यहाँ पर उत्तर देना शुरू किया हमने। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनाओगे, टी फॉर्म में बनाओगे। रुको 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 रुको, थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बस ये टी शेप बना दो, यहाँ पर ऐसे लिख दो। ठीक, वेरी गुड। डेबिट लिख दो और क्रेडिट लिख दो। अब तुमको कहता है कि लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000। अपने बैलेंस शीट में देखो लैंड 50,000 है, तो लैंड की वैल्यू बढ़ गई। तो क्या लिखना है? बाय लैंड। इधर लिखना है, जिस एसेट की वैल्यू बढ़ जाए उसको इधर, एसेट की वैल्यू घट जाए उसको इधर, लायबिलिटी की वैल्यू घट जाए इधर, बढ़ जाए इधर। यही सिखाया ना मैंने। तो बाय लैंड, ये बात याद रखना है। रिवैल्यूएशन में क्या करना है?
जो एसेट की वैल्यू बढ़ जाए उसको क्रेडिट में, जिस लायबिलिटी की वैल्यू घट जाए उसको क्रेडिट में, जिस एसेट की वैल्यू घट जाए उसको डेबिट में, जिस लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए उसको डेबिट में, ओके, डालना होता है। दूसरा तुम्हारा कितना हो गया, लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 80,000, तो 50 से हो गया 80, तो कितना हो गया 30,000 की वैल्यू हो गई। 30,000 की वैल्यू भाई साहब लैंड की हो गई। बिल्डिंग भी डेप्रिसिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग कितना है 50,000 है, 6% कितना होता है 3,000, तो यहाँ पर लिख दोगे जिस एसेट की वैल्यू घट गई वो यहाँ दिखा दोगे, कितनी जी 3,000, यस सर नो, 50 को 6% 3,000। क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी इतने से क्रेडिटर तुम्हारा घट गया। अभी अभी क्या बोला मैंने, लायबिलिटी घट जाए तो क्रेडिट साइड में, कितने से 6,000 से, तुमने यहाँ लिख दिया 6,000। अब और कोई आइटम है नहीं, तो टोटल कर दे इसको भाई 36,000 टोटल हो गया। इधर भी लिख दो 36,000, मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉफिट बच गया ना, टू प्रॉफिट, TRFD का मतलब ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन से हैं, A इज कैपिटल, B इज कैपिटल और C इज कैपिटल। भाई साहब ये जो है ना, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। कितना हो गया 33,000 हो गया। किस रेशियो में बांटना है मित्रों, ओल्ड रेशियो में बांटना है, समझ में आ रही है बात, ओल्ड रेशियो में बांटो। ओल्ड रेशियो क्या है 3:1, 3 2 5 1 6, तो 6 से डिवाइड करो 33,000 को, कितना निकलेगा, 6 से डिवाइड करोगे 33,000 को तो 5,500 निकलेगा। 5,500 इंटू 3 17,500, 5,500 इंटू 2 11,000 और ये हो गया 5,500। ऐसे दिखाना है तुमको, है ना, ठीक है। चलो तो रिवैल्यूएशन 16,500 होगा भाई साहब, ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर दिया मैंने। 5500 इंटू 3 16,500, 55 कितना हो गया 33,000 को तुम 6 से डिवाइड करोगे 5,500 होगा। 5,500 को 3 से मल्टीप्लाई करो 16,500, 5,500 को 2 से मल्टीप्लाई करो 11,000, 5,500 को 1 से 5,500। देखो एक तरीका भी मैं सिखा रहा हूँ कैसे तुम शॉर्ट में आराम से जल्दी जल्दी कर पाओगे। अब करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A B C, इधर भी A B और C, CR और DR। यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ भी पार्टिकुलर्स। पहले जो भी बैलेंस है वो ले आओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आ गया 1,50,000 और 25,000, 1,50,000 और 25,000। थोड़ा बड़ा कर दो भाई इसको। अच्छा, अब प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो लिखना है बाय रिवैल्यूएशन। ये ट्रांसफर कर दो, कितना 16,500, 11,000 और 5,500, समझ गए। अच्छा ये हो गया। और ये कंपनसेशन की जो तुमने जर्नल एंट्री पास की थी उस एंट्री की पोस्टिंग करो, इसलिए मैंने एंट्री पास कर दी। तुम हमेशा एंट्री पास करोगे, याद रखोगे। इसको हमने क्या करना है, पोस्ट करना है। C2A
तो यहां पर लिखना है 2A's कैपिटल अकाउंट, सी का कॉलम कितना 25,000, और यहां क्या लिख दोगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और ए का कॉलम यानी ए को मिलेगा क्योंकि ए ने सैक्रिफाइस किया है, देगा कौन सी, देखो सी के डेबिट साइड में आ गया, सी का घट गया बैलेंस और ए का बढ़ गया। और कुछ तुम्हारे पास में जनरल रिजर्व है तो तुमको जनरल रिजर्व को बांट देना चाहिए बाय जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट को हमेशा चेक करना, एडजस्टमेंट्स करने के बाद तुम बैलेंस शीट को चेक करना कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है कि नहीं। जनरल रिजर्व है 30,000 का, तो इसको तुम 3:1 के रेशियो में बांट दोगे, ये हो जाएगा 15,000, 10,000 और 5,000 दोस्तों, हो गया, ये भी समझ में आ गई। और कुछ है बांटने वाला क्या, और कुछ है, और कुछ नहीं है, तो अब आप क्या करो, इसका टोटल कर दो, ठीक है, इधर भी टोटल कर दो। अब टोटल में क्या लिखोगे भाई, 5500 और 5000, 10,500 और 25, 35,500, ठीक है, कितना हो गया 35,500 हो गया, तो इधर भी 35,500 हो गया, इधर कितना है 11 और 10 21 और 50 71,000, ये हो गया 1,56,500, 35,000 25 30,500 35,500, $71,000 और 1,56,500। अब तुम यहां पर लिख दोगे टू बैलेंस CD 1,56,500 71,000 और ये हो गया 10,500। चलो तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब मैंने थोड़ा इधर करके लिखा है, तुम पूरे में लिखना अच्छे से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब आगे तुमको बोला है बैलेंस शीट बनाइए, तो देखो भैया बैलेंस शीट यहां पर बना लेता हूं मैं, जगह थोड़ी कम ली है मैंने, लेकिन तुम समझदार हो, समझते ही हो कि कैसे मुझे इस जगह का इस्तेमाल करना है। मैंने एक ही बोर्ड पे सारी चीज़ें आ जाए इसलिए थोड़ी सी कंजूसी कर दी है मैंने, नहीं तो खुला खुला लिखता। चलो अब तुम देखो बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट को ध्यान से करना है। सबसे पहले एसेट साइड में ले लो, तुमको पता ही है यार, ये लायबिलिटी साइड होती है और ये एसेट साइड होती है, ये तो तुमको मालूम ही है, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आइटम्स कैसे करोगे, जो भी रिवाइज्ड वैल्यूज़ हैं वो लोगे। पहले ले लो पार्टनर्स कैपिटल ABC, तीनों के कैपिटल के बैलेंसेस कितने आए, 1,56,500 71,000 और 10,500। टोटल देख लो मत बंधु, जितना भी आए टोटल कर दो। कितना आया टोटल, कितना आया टोटल बंधु, जोड़ दो यार। देखो 1,56,500 71,000 और 10,500 कितना हो गया, 0 0। टोटल हो गया ये 2,38,000। वेरी वेल। अब तुम्हारे पास क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स। बॉस क्रेडिटर्स तुम रिवैल्यूएशन में अगर देखो तो क्रेडिटर्स जो है 6,000 से घट गया है, मतलब तुम्हारी 50 थी, अब क्रेडिटर कितनी हो गई, 44,000। चलो बिल्स पेएबल के बारे में कोई बात नहीं है, तो बिल्स पेएबल तुम्हारी जितनी थी उतनी ही रहेगी। कितनी थी बिल्स पेएबल,
ये थी 20,000, 20,000 ले लो। एक और चीज आई है तुम्हारे पास नहीं ठीक है, तो बिल्स पेबल हो गया 20,000, तो 20,000 तूने ले लिया। ऑलराइट, अब इस तरफ कुछ भी नहीं है क्योंकि जनरल रिजर्व है, उसको तुम ऑलरेडी बांट चुके हो। एसेट साइड में देखो, तुम्हारे पास लैंड है, लैंड के बारे में बोला है कि ये बढ़ गया है, तो लैंड की नई वैल्यू कितनी हो गई? 80,000 हो गई बंधु। बिल्डिंग बोला है आपकी घट गई है क्योंकि यहां पता चल गया 3,000 से, तो बिल्डिंग पहले कितनी थी? 50,000 थी, अब कितनी हो गई? 47,000 हो गई। ये भी समझ में आ गई बात। प्लांट के बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो प्लांट 1 लाख थी तो 1 लाख ही रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टॉक भी कहता है कि आपकी स्टॉक की वैल्यू कुछ भी है क्या? नहीं, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो स्टॉक तुम्हारी एज इट इज रहेगी 40,000। स्टॉक के बाद देखिए आप डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं आया। डेटर्स की वैल्यू है मित्रों 30,000 की, तो 30,000 हो गया। और लास्ट में जो तुम्हारे पास बचता है वो बचता है बैंक, ये है 5,000। ये टोटल हो गया बैलेंस शीट का 3,02,000 इधर भी और 3,02,000 इधर भी। तो देखो आपने ये क्वेश्चन कर लिया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें सारे एडजस्टमेंट्स आपने सीखे कैसे कैसे करने होते हैं, रिवैल्यूएशन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया, और ऐसे क्वेश्चंस भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब कोई और क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। देखिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखें, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। सारी चीजें ऊपर पढ़ ली, 4, 3, 2, 1 का रेशियो है, राम मोहन सोहन हरी है। कहता है 1 अप्रैल को ये आपका बैलेंस शीट है, और नीचे बोलता है फ्रॉम द अबव डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1, 2, 3, 4। अब जैसे ही ऐसा बोला तो तुमको समझ में आ गया कि सबसे पहला वर्किंग नोट मेरे को यार स्टार्ट कर लेना चाहिए। सबसे पहला वर्किंग नोट हमको लिखना चाहिए, हमारे पार्टनर्स कौन कौन है? राम मोहन सोहन हरि, लंबे चौड़े नाम है, राम मोहन सोहन एंड हरि। तो तुमको क्या करना चाहिए? ओल्ड रेशियो। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 4, 3, 2, 1, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, माने 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। फिर तुम्हारा न्यू रेशियो है। देखो ये सारी वीडियोस एक्सक्लूसिव इंग्लिश में भी आपको मिल सकती है। एक्सक्लूसिव इंग्लिश, नो यूज ऑफ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी। ये पूरा का पूरा ये उन छात्रों के लिए होगा जो छात्र सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी समझते हैं। हमारे कुछ छात्र विदेशों में भी रहते हैं, उनका रिक्वेस्ट है कि सर इंग्लिश में बनाइए, हम लोगों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो हम सारे अब वीडियोस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बनेंगे। जिसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना हो इंग्लिश में पढ़ेगा, जिसको हिंदी पढ़नी हो वो हिंदी में पढ़ेगा। ठीक है, ये अनाउंसमेंट है, याद रखना तुम लोग। न्यू रेशियो आपका क्या है? 1, 2, 3, 4 है। तो 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। अब तुमने क्या किया? यहां एज ऑलवेज मैं बोलता हूं सैक्रिफाइस गेन लिखो। सैक्रिफाइस या गेन ओल्ड माइनस न्यू, तो आप फटाफट करो। देखो इसका डिनोमिनेटर चूंकि सेम है ना, इसलिए मुझे कुछ सर्कस करने की जरूरत है नहीं, मैंने सबके डिनोमिनेटर में 10 डाल दिया। फिर ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दिया न्यूमरेटर को, तो 3/10,
3 में से 2, 1/10, 2/3 माइनस और -3। देखो मित्रों, ये दोनों हो गए गेन, ये दोनों हो गए गेन और ये दोनों हो गए सैक्रिफाइस। तो देखो दोस्तों, अब कंपनसेशन फॉर गुडविल क्या होगा? कंपनसेशन फॉर गुडविल, देखो ये इसको कंपनसेट करेगा और ये इसको कंपनसेट करेगा, मतलब सॉरी उल्टा लिख दिया, ये इसको कंपनसेट करेगा और ये इसको कंपनसेट करेगा। यानी जिसने गेन किया वो सैक्रिफाइस को कंपनसेट करेगा। देखो 3/10 सैक्रिफाइस इसका है, 3/10 गेन इसका है, तो इन दोनों ये इसको और ये इसको करेगा। तो अब तुम देखो ये जो गेन है ना इसका, इसने क्या कंपनसेशन और इसके कंपनसेशन, इन दोनों के कंपनसेशन के अमाउंट को देखना है तुमने, ठीक है, कंपनसेशन के अमाउंट को देखना है, कंपनसेशन फॉर गुडविल। तो ये दोनों कितना कंपनसेट करते हैं या इनको कितना कंपनसेशन चाहिए वो भी यहाँ से 1/10 से भी निकल सकता है, इनको कितना कंपनसेशन चाहिए वो भी निकल सकता है। दोनों एक ही बात है, एक ही बात है, बस हमने नाम बदल दिए, बाकी दोनों सेम है। तो पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है गुडविल 1,80,000 फर्म की वैल्यू हुई है, तो कोई टेंशन नहीं, 1,80,000 इंटू 1/10 कर दो और यहाँ पर 1,80,000 इंटू 3/10 कर दो, ये हो गया 54,000 और ये कितना हो गया 18,000। यहाँ पर एक जर्नल एंट्री पास कर दो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जर्नल एंट्री ज़रूर होना चाहिए, जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे तो कौन दे रहा है किसको? सोहन्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे? सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो सोहन ने कितना कंपनसेशन, पहले मैंने सोहन लिखा है, सोहन लिखा है तो यहाँ पर ये 18,000 किसको जाएगा? मोहन को जाएगा। तो यहाँ पर मोहन्स लिख दो और यहाँ पर राम्स लिख दो, सिंपल है। सोहन्स कैपिटल अकाउंट, सोहन कितना कंपनसेट करेगा? 18,000, तो ये लिख दिया 18,000। हरी कितना करेगा? 54,000। मोहन को कितना कंपनसेशन जाएगा? 18,000 और राम को कितना कंपनसेशन जाएगा? 54,000। ये आप बात समझ में आ गई? ये मैंने दिखाया कि 3/10 इसका गेन है और 3/10 इसका सेक्रीफाइस है। तो दिस टू दिस, ये अगर डेबिट में 54,000 है तो क्रेडिट में राम का 54,000 होगा, डेबिट में अगर सोहन का 18,000 है तो क्रेडिट में मोहन का 18,000 होगा। ये उल्टा सीधा मत लिख दीजिएगा, उल्टा सीधा लिखेंगे सारा काम चौपट हो जाएगा, समझ गए? उल्टा सीधा नहीं लिखिएगा, जैसे मैंने बताया है वैसे लिखिएगा, ध्यान रखिए। चलिए ये एडजस्टमेंट समझ गए। कहता है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 1.5 लाख। दोस्त वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 1 लाख 20,000। अब दूसरा वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट नंबर 2। अब यहां क्या ध्यान देना है? कहता है द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड एट 150। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन पेबल है वो तो 1.5 लाख है यार, और तुम्हारे पास जो WCR है वो 1,20,000 है, यानी वर्कमैन कंपनसेशन पेबल 1.5 लाख है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20 है, तो 30,000 की तुम्हारी क्या हो रही है? डेफिशिएंसी हो रही है, कमी हो रही है 30,000 की। मित्रों ये कौन पे करेगा? ये पार्टनर्स करेंगे। कौन करेंगे? पार्टनर्स करेंगे। किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में करेंगे, समझ गए? तो अब आप एक यहाँ पर जर्नल एंट्री पास कर दो, बहुत ही सिंपल जर्नल एंट्री है। वर्कमैन कंपनसेशन, WCR माने वर्कमैन, तुमको पूरा लिखना है। अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन पेबल, कितना बंधु? 1.5 लाख, कितना रिजर्व? 1,20। तो बाकी कहां से जाएगा? रिवैल्यूएशन, क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000। चलो ये पहली एंट्री पास कर दी। दूसरी एंट्री, ये चूंकि रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो
कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा पार्टनर्स का। तो क्या लिखोगे, पार्टनर्स, अगर इवैल्यूएशन डेबिट में हो गया तो क्या बोला मैंने, और कुछ नहीं है तो इसका मतलब हो गया कोरस्पॉन्डिंग लॉस हो जाएगा पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स अपने लॉस को कैसे करेंगे, ओल्ड रेशियो में करेंगे, तो राम्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक बार चेक कर लेना है, तुम्हारे बैलेंस शीट को भी देख लेना है कहीं कोई करंट अकाउंट का बैलेंस तो नहीं है। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस होगा तो इसका मतलब ये एंट्रीज करंट अकाउंट के थ्रू होंगी। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हो गया ना, रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ उसको हमने बांट दिया किस रेशियो में बच्चों, रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ उसको किस रेशियो में बांटा, ओल्ड रेशियो में। तो 4 3 7 2 9 1 10 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 12,000 9,000। अच्छा 4 पार्टनर्स हैं, सॉरी यार, राम मोहन सोन हरी, हरीज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो, हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 4 पार्टनर्स हैं, 30,000 ये हो गया, बांट दो भैया 4 3 2 1 के रेशियो में। तो 12,000 9,000 6,000 और 3,000। ओके, तो ऐसे करके एंट्रीज आपने पास कर दी। यहाँ ये बात समझ में आ गई। तो जितने भी इसके एडजस्टमेंट्स थे उसमें से आप लास्ट एडजस्टमेंट को देखो, कहता है एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब और तुमको बोलता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करने को बोलता है। तो अब इस फ्रेम में तो होगा नहीं, इस सबको मुझे मिटा करके आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा और मुझे बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी होगी। तो आप इसको समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को समझने की चेष्टा करते हैं। देखिए मैं ये वाला जो वर्किंग नोट है ना ये हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं अब इस क्वेश्चन में चूंकि मेरे को बोलता है रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करो, तो तुम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर लो यार। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लो। क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे देखो, रिवैल्यूएशन टू WCP, तो यहाँ लिख लो टू WCP कितनी हो गई, 30,000 हो गई। फिर यहाँ पर क्या करोगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल, सोहन्स कैपिटल, हरीज कैपिटल, टोटल कर दो कितना है ये 30,000 हो गया। ये टोटल 30,000 इस तरीके से इसको आप प्रिपेयर कर लोगे, बांट दोगे। मैंने ऑलरेडी जर्नल एंट्री में बांट के दिखाया हुआ है, बस ये फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं करके दिखा रहा हूँ कि देखो ऐसे तुम करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यहाँ डेबिट लिख दोगे और यहाँ क्रेडिट लिख दोगे। तुम तो समझदार हो गए हो, बस हो गया। अब फिर से मुझे इसको रब करना पड़ेगा और यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मुझे बना करके दिखाना पड़ेगा। चलो इसको रब करते हैं। अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ मैं, इसको बड़े ही गौर से ध्यान से देखना है। 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 4 पार्टनर्स हैं। कौन कौन है, हरी, सोहन, मोहन,
राम, राम, मोहन, सोहन और हरि। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना है इसको। ये सामान्य पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है। पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 4 लाख, 4.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख लिख दिया तुमने, सॉरी 2.5 लाख और 2 लाख, ये है 2.5 लाख, ये 2.5 लाख और ये है 2 लाख। समझ गया? अब तुमने जो जो जर्नल एंट्रीज पास करी हैं उन जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग देखो इसमें कर दो। क्या क्या एंट्रीज पास करी हैं देखो। तुमने एक तो रिवैल्यूएशन का लॉस यहाँ पर किया है, तो यहाँ लिख दो टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो इस तरफ दिखेगा। क्या क्या अमाउंट आए हैं वो देखो, 12,963, इसमें लिख दो 12,000, 9,000, 6,000 और 3,000। चलो, इसके बाद ये एंट्री तुमने पास की थी गुडविल के लिए, ठीक है, तो इस एंट्री की पोस्टिंग कर दो। सोहन हरि टू मोहन, टू मोहन और टू राम। सोहन का कॉलम ले लो, मोहन के लिए सोहन का कॉलम ले लो, समझ गए, और हरि का कॉलम ले लो राम के लिए। और इसलिए बच्चों ये एंट्रीज मैंने इस तरीके से कराई थी आपको कि अमाउंट का खास ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। है ना? चलिए इसके लिए लिख दीजिए 54,000, ठीक है। अच्छा, फिर इस तरफ आ जाइए, टू बाय सोहन, यहां लिखिए बाय सोहन, कॉलम किसका ले लीजिए, मोहन का, 18,000। फिर ले लीजिए बाय हरि, और कॉलम कौन सा ले लीजिए, राम। ठीक है जी, तो इसकी एंट्री की पोस्टिंग कर दी, इसलिए एंट्री बचा के रखी थी मैंने। कैसे पोस्टिंग करी इस बात को ध्यान से देखें आप। अगर आप इस बात को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा बच्चों। लाइनें सीधी नहीं होती। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई क्या यार, 2 लाख, ये सब आपने कर दिया। अब कुछ देखिए, अब आपको क्या करना है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। अब मैं इस एंट्री को मिटा देता हूं क्योंकि मुझे इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। चलिए, अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है, पहले तो एडजस्टेड कैपिटल निकालिए। कैसे होगा, हरि का, यहां लिखिए टोटल एडजस्टेड कैपिटल। कौन कौन है मित्र तुम्हारे यहाँ, राम, फिर मोहन, सोहन। अब हमें इस एंट्री की भी आवश्यकता नहीं है, इन सबको हटा दिया मैंने। राम, मोहन, सोहन एंड हरि। अब देखो राम का कितना है करके देखो,
4,54,000 में से 12,000 निकाल दो। देखो ये इसको कहाँ करना है, वर्किंग नोट पे पहले करना है, फिर इसमें अमाउंट्स वगैरह डालने हैं, वैसे नहीं डालना। अब 4,42,000 मोहन का देखो, 4, 50 और 18 मतलब 468 में से 9 घटा दो, 468 में से 9, 4,59,000। ये बात समझ में आ गई। सोहन देखो 2.5 लाख है ना, यहाँ पे 24,24,000 घटा दो, 2,26,000। 2 लाख है ना, इसमें से 54,357 घटा दो, 1,43,000। स्टोरी समझ में आ रही है? 1,43,000 ये तुम्हारे हो गए एडजस्टेड कैपिटल। कैसे की निकाला मैंने? जब मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद ऑल द एडजस्टमेंट्स कर दिया, उसके बाद हमने क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दिया, जो भी एडजस्टेड कैपिटल उसको बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। इसका टोटल कर दो बंधु, मैंने यहाँ लिखा है टोटल एडजस्टेड कैपिटल, इसका टोटल कर दो। नहीं 12,70,000, 12,70,000 तुम्हारी एडजस्टेड कैपिटल हो गई। तो आपने क्या किया, राम मोहन सोहन हरि के जो भी एडजस्टेड कैपिटल है वो यहाँ लिए, उस एडजस्टेड कैपिटल का आपने यहाँ पर टोटल ले लिया। अब इस टोटल को क्या करो ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। किस रेशियो में बांट दो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो। ऐसे बांटो इसको, तुम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में NPSR में बांटो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांट दो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो 12,70 को। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है तुम्हारा? तुमको कहता है कि 1, 2, 3, 4 यानी 1:2:3:4 में बांटो। जब तुम इसको बांटते हो 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10 यानी 1,27,000, इसका आता है 1,27,000। ये तुम्हारी न्यू कैपिटल है। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे तो ये हो जाएगी तुम्हारी न्यू कैपिटल। अच्छा, फिर 1,27 इंटू 2,54,000, 1,27 इंटू 3, 3,81,000 और 1,27 इंटू 4, 1,27,000 इंटू 4 इट कम्स टू 5,08,000। ऐसे आ गया। अब तुम अपने एडजस्टेड कैपिटल और न्यू कैपिटल को कंपेयर करो। तुम देखो एडजस्टेड कैपिटल राम के केस में ज़्यादा है, तो यह कंडीशन किसका है? सरप्लस का कंडीशन है। यहाँ भी कंडीशन तुम्हारा सरप्लस का है, सरप्लस का है। और यहाँ जो है वो शॉर्टेज है, और यहाँ भी क्या है? शॉर्टेज है। अब देखो सिचुएशन क्यों? क्योंकि नई वाली एडजस्टेड से ज़्यादा है, नई वाली एडजस्टेड से ज़्यादा है, नई वाली एडजस्टेड से कम है, इसलिए सरप्लस हो गया। यहाँ पर भी वही हिसाब किताब है, यानी जो न्यू वाली है वो उससे कम है। अब तुम इसका डिफरेंस निकाल लो, 4,42,000 माइनस 1,27,000 इट कम्स टू 3,15,000। 3,15,000 यहाँ पर 4,59,000 4,59,000 माइनस 2,54,000 2,05,000। अब यहाँ पर ले जाओगे ऐसे 381 माइनस 226 11 माइनस 6, यहाँ से 11 माइनस 6 5 7 माइनस 2 5 और 3 माइनस 2 1,55,000 का ये डेफिसिट या शॉर्टेज हो गया। यहाँ पर 8 माइनस 3 5 10 माइनस 4 6 4 माइनस 1 3 365 का इधर शॉर्टेज हो गया। ठीक है, तो जो शॉर्टेज होगा वो लेके आएगा और जो सरप्लस होगा वो ले जाएगा।
आपको कहता है कि आपके क्वेश्चन में कहता है एडजस्ट द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पर आप जर्नल एंट्री पास कर लो कुछ। देखो मित्रों, ये जर्नल एंट्री यहाँ पर पास करो, बहुत ही जरूरी जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। जरूरी जर्नल एंट्री नंबर, अब सबके लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। राम के लिए, तो राम क्या करेगा, ले जाएगा, तो ले जाएगा तो क्या होना चाहिए, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश ले जाता विड्रॉ करता तो लिखते टू बैंक, लेकिन यहाँ बोला कि करंट अकाउंट ओपन करके कीजिए, तो आप लिखेंगे राम्स कैपिटल, क्या लिखेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स करंट अकाउंट, CR मतलब करंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट हो गया 3,15,000, 3,15,000, ये पहली एंट्री पास कर दी। दूसरी एंट्री पास कीजिए मोहन के लिए, मोहन के लिए भी लिखिए मोहन्स कैपिटल डेबिट टू मोहन्स करंट अकाउंट, इसके लिए अमाउंट कितना है, 2,05,000। तीसरी एंट्री पास कीजिए किसके लिए, सोहन के लिए, सोहन का शॉर्टेज है, सोहन लेके आएगा, तो लिखेंगे सोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू सोहन्स करंट अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,55,000, 1,55,000। और डायरेक्शन जो है वो बताता हूँ मैं, और हरी के लिए भी, हरीज करंट अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 365, 3,65,000, 3,65,000, ठीक है। ये एंट्रीज पास कर दी। अब इन एंट्रीज के यहां पर पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए राम्स कैपिटल टू राम्स करंट, तो यहां पर लिख देंगे, क्योंकि ये ले जाएगा तो लिखेंगे टू राम्स करंट अकाउंट, टू राम्स करंट अकाउंट, और राम के करंट अकाउंट में अमाउंट डालेंगे 3,15,000, और टू मोहन्स करंट अकाउंट, और मोहन में लिखेंगे 2,05,000 है, तो 2,05,000, ठीक है। एंट्री की पोस्टिंग कर दी। अब इधर देखिए सोहन्स करेंट टू सोहन्स कैपिटल, यहां लिखेंगे बाय सोहन्स करंट अकाउंट, तो सोहन के कैपिटल अकाउंट में कितना, 1,55,000। फिर लिखेंगे बाय, चौथी एंट्री है हरीज करंट अकाउंट, हरीज करंट अकाउंट, हरी के में कितना, 3,65,000। ये सब करने के बाद अब आप एक चीज देखेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको जादू। क्या दिखाऊंगा मैं, दिखाऊंगा आपको क्या, जादू। या लिखेंगे टू बैलेंस CD। अब मैं CD क्या लिखूंगा, देखो मित्रों, मैं CD लिखूंगा, ये जो नया कैपिटल है CD क्या होना चाहिए,
तुम्हारा जो कैपिटल बैलेंस होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। मैं सीधे यहाँ से ये अमाउंट उठाऊंगा और यहाँ पर बैलेंस में डाल दूंगा। फिर तुम दोनों साइड टोटल करना, ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा। तो तुम कहोगे सर ने बिल्कुल सही प्रश्न करके हमको बता दिया। ठीक है, यानी इस तरीके से तुम्हारा भी सही है या गलत है तुम जांच सकते हो। तो जांचने के लिए क्या करो, नए कैपिटल यहाँ पर डाल दो। तो टू बैलेंस शीट 1,27,000, इसका 2,54,000, इसका 3,81,000, जिसका 5,08,000। ठीक है, हो गया। अब तुम भैया करो टोटल, देखो कितना आता है। 2 और 3 कितना हो गया, 5,65,000। यहीं से शुरू हो जाओ, इसका इधर आओ, 5, 8 और 54, 5, 62 और 3, 5, 65। हो गया। इधर उधर मत झांको, यहां देखो सीधे मैच करेगा। 1, 55 और 2, 50 कितना हो गया, 3,05,000। यहां देखो कितना हो गया यार, 2,50 है, सॉरी, 2,50 और 1,55, 4,05,000। यहां भी देखो 3,81, 6,18, 24, ये हो गया 4,05,000। समझ गए। यहां देखो 4,18,000 यानी 4,68,000। यहां भी देखो 4,68,000, देखो 50, 54 तो 4,59,000 और 9, 4,68,000। देखो ऑटोमेटिकली मैच करेगा। 4,54,000 और यहाँ भी देखो 1, 27, 3, 15 और 12 को जोड़ोगे ये आ जाएगा 4,54,000। तो क्या समझ में आया कि अगर तुमने ये एडजस्टमेंट्स कर लिए और यहाँ पर तुमने नया कैपिटल डाल दिया, ऑटोमेटिकली यहीं से उठा के डाल दिया। तुमने पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाले, एडजस्टेड कैपिटल निकालने के बाद तुमने क्या किया, इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। बांटने के बाद तुमने सरप्लस या शॉर्टेज निकाले और सरप्लस शॉर्टेज निकालने के बाद तुमने ये जर्नल एंट्री पास की और इस जर्नल एंट्री को उठा करके पोस्टिंग कर दी कहाँ पर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब तुमने क्या किया, पोस्टिंग करने के बाद तुमको बैलेंस सीडी तो ले जाना है बैलेंस शीट में, तो तुमने नए कैपिटल्स को उठा करके डाल दिया। जो नए कैपिटल के तुम्हारे बैलेंसेज होंगे वो उठा करके तुमने अपनी बैलेंस सीडी में डाल दिया और फिर तब तुमने सबके कॉलम्स को टोटल कर दिया। तो तुम देखोगे ऑटोमेटिकली डेबिट टोटल और क्रेडिट टोटल मैच कर जाएंगे हर एक पार्टनर के। और अगर ऐसा हो जाता है तो समझो तुम्हारा जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब आ जाइए बैलेंस शीट पे। यहां पर तुमने लायबिलिटी और एसेट्स में डिवीजन कर लिया। पार्टनर्स कैपिटल ले लिया, नाम लिख दो राम, मोहन, सोहन और हरि। कितने कितने पैसे हैं, 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000 और 5,08,000। टोटल करने की जरूरत ही नहीं है, तुमको पता है 12,70,000 है। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी कर दो, ठीक है। अब पार्टनर्स अकाउंट देखो, जिन पार्टनर्स के क्रेडिट टोटल हैं, समझ में आ रही है बात, जिन पार्टनर्स के क्रेडिट टोटल हैं, क्रेडिट में उसको क्रेडिट लायबिलिटी साइड में डालो और जिनके डेबिट में है उसको एसेट साइड में डालो। यस और नो। पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट में कौन कौन है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट में है राम और मोहन, तो यहां पर लिखेंगे राम्स करंट अकाउंट, मोहन्स करंट अकाउंट। कैसे पता चला, देखो राम और मोहन दोनों क्या है, क्रेडिट में, इसलिए राम और मोहन को लायबिलिटी साइड में डालेंगे, ये याद रखना है।
3,15,000, 2,05,000, टोटल कितना हो गया? 5,20,000। अब और कोई आइटम है? वर्कमैन कंपनसेशन पेएबल 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन पेएबल कितना था? 30,000 था, तुमने रिवैल्यूएशन में डाला हुआ है। चलो, लायबिलिटी साइड हमारी हो गई। एसेट साइड में देखो, फिक्स्ड एसेट्स सिंपल, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है? 9 लाख है। करंट एसेट्स कितनी है? 5,20,000 है। अच्छा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट में देखो, डेबिट में किस किस का करंट है? सोहन्स करंट अकाउंट, सोहन्स करंट अकाउंट और हरीज करंट अकाउंट, हरीज करंट अकाउंट। अमाउंट लिखो, सोहन का है 1,55,000, 3,65,000, 1,55,000, 3,65,000, टोटल कितना हो गया? 5,20,000। अब और कोई आइटम तो नहीं है? नहीं है बॉस। अब टोटल कर दो, तो 9, 5, 14, 5, 19,40,000, इधर भी 19,40,000। तो मित्रों, तुमको एडजस्टमेंट आ गया ना? अगर यहां पर करंट अकाउंट ओपन करके नहीं कैश से होता तो तुम राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते, सोहन्स मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट कर देते, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट कर देते। यानी इसी प्रश्न के साथ मैंने वो कॉन्सेप्ट भी आपको यूज कैसे करेंगे वो मैंने बता दिया। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो सारे प्रैक्टिकल्स ऐसे वाले मैंने करा दिए हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आगे आने वाले चैप्टर्स जो एडमिशन होंगे, रिटायरमेंट होंगे, डेथ होंगे, सब में ये काम आ सकते हैं। इसलिए यहीं पर अगर अच्छे से इसको आप समझ लें तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझें तो भगवान मालिक है ना? भगवान समझाएंगे। फिर अगर आप खुद से नहीं समझोगे तो ईश्वर समझाएंगे, और ईश्वर समझाते हैं ना बेटा, तो उसकी जो है, कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है, तो ऐसा ही होता है। पढ़ लीजिए, नहीं तो बस काम खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस तरीके से आज की कक्षा समाप्त हुई। थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस।